going to do. After that, you will calculate the position of the voltage maxima, position of the current minima, and position of impedance maxima. So we are following the set template. As I already said, every topic in electromagnetic field theory is preceded by some standard template. So just you have to follow the same thing as we were doing in the previous cases. So what are the positions of the voltage maxima? So the position of the voltage maxima becomes x equal to 2n pi plus theta v upon 4 pi into lambda. Fine. आपको पता है यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी. You have to put the value of theta v equal to 0 degree. In case of matched transmission line also theta v was 0 degree, but in this case you know that your mod gamma v is not equal to 0. ठीक है. तो जब भी theta v 0 degree हम लोग पुट करते हैं, you must ensure that your mod gamma v should not be equal to 0. If your mod gamma v becomes equal to 0, in that case you will also get theta v equal to 0 degree, but in that case you will not be having any standing wave pattern. So if you are not having any standing wave pattern, you cannot calculate the positions of the voltage maxima, current minima and impedance maxima. So remember, whenever you are putting theta v equal to 0 degree, always ensure that your mod gamma v is not equal to 0. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है जिसको आप आगे से याद भी रखेंगे. सिर्फ थीटा v इक्वल टू 0 होना पॉसिबल नहीं है, योर मॉड गामा v शुड ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है. चलिए, तो लेट मी पुट द वैल्यूज हियर. सो यू विल गेट x इक्वल टू 2n पाई अपॉन 4 पाई इंटू लैम्डा. तो देखो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, you will get n lambda by 2. So I'll put n equal to 0 first of all. This n equal to 0. x equal to क्या मिलेगा आपको 0. At n equal to 1, you will get x equal to lambda by 2. This will give you the first voltage maxima. This will give you the second voltage maxima. तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको शॉर्ट सर्किट के केस में क्या याद था? इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट यू रिमेंबर दैट एग्जैक्टली एट द लोड you were having the voltage minima, but in this case what happened? Exactly at the load, this x equal to 0 is representing what? X equal to 0 is representing exactly the position of the load. So if you have to talk about exactly the position of the load, then now you are having voltage maxima at the load. ठीक है, काफी सिंपल है. तो देखो दोनों में चीजें ना काउंटर पार्ट होती जा रही. फर्स्ट जो केसेस थे, इन द फर्स्ट टू केसेस ZL इक्वल टू 0 एंड ZL लेस देन Z0. इन दैट केस एग्जैक्टली एट द लोड यू आर गेटिंग द वोल्टेज मिनिमा. फिर ZL इक्वल टू Z0 आया, वहाँ पे ना वोल्टेज मिनिमा ना वोल्टेज मैक्सिमा. फिर जैसे ZL को थोड़ा सा आपने और बढ़ाया, Z0 से जैसे उसने शूट अप करा, एग्जैक्टली लोड पे उसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? इट स्टार्टेड मेकिंग द फर्स्ट वोल्टेज मैक्सिमा एट द लोड इटसेल्फ. तो ये क्रूशियल पॉइंट आप इनको याद रखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने ZL को वेरी कराते जा रहे हैं, ZL पहले 0 था, थोड़ा सा ऊपर ले आए ZL लेस देन Z0, फिर ZL इक्वल टू Z0, फिर थोड़ा सा और ऊपर लेके आए जहाँ पे ZL की वैल्यू Z0 से ज़्यादा हुई. As soon as the value of ZL shoots up greater than Z0, in that case exactly at the load you will be getting the voltage maxima. So this is something which you have to consider in every cases. So first voltage maxima in this case becomes x equal to 0 exactly at the load. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा. अब बाकी चीज़ें इसमें अंडरस्टूड हैं. दैट इफ इट इज़ योर फर्स्ट वोल्टेज मैक्सिमा, दिस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द फर्स्ट करंट मिनिमा and the first impedance maxima. So both of the things you can directly write it here. I'm not writing all the possible things. सिर्फ voltage अगर हमें याद है, बाकी सारी चीज़ें आप खुद से derive कर सकते हैं. Okay? चलो next देखते हैं. What will be the position of the voltage minima? What will be the position of the current maxima? What will be the position of the impedance minima? So what is the formula of this particular x? So this x becomes 2n plus 1 pi plus theta v upon 4 pi into lambda. Okay, so if you put all the values here, you will be having 2n plus 1 and lambda by 4. चलो अगर मैं यहाँ पे n को 0 पुट कर दूँ, if I put n equal to 0 here, you will be having x equal to lambda by 4. If I put n equal to 1, you will be having 3 lambda by 4. As long as the positions are concerned, you can write this thing as first voltage minima. First voltage minima. Okay. This will become second voltage minima. तो देखो पूरा का पूरा आपने जो स्टैंडिंग वेव रेशियो था ना,
उसको बिल्कुल आपने ओपन करके रख दिया. अब स्टैंडिंग वेव रेशियो में यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन ऑल द एस्पेक्ट्स, थ्योरेटिकली, लॉजिकली, मैथमेटिकली, इन ऑल द सेंस यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल इन द केसेस ऑफ द स्टैंडिंग वेव रेशियोज. ठीक है, तो ये पॉइंट में हमने कंसिडर करा. ऑब्वियसली इफ इट इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट वोल्टेज मिनिमा, यू कैन इमीडिएटली कंसिडर दैट दिस विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन द फर्स्ट करंट मैक्सिमा as well as in the first impedance minima. So if you have only the voltages representation, you can go for the current as well as for the impedance representations. तो obviously ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. What will be the magnitude of the voltage at a distance from load? So if I talk about the magnitude of the voltage at a distance from load, this becomes mod Vf under root 1 plus mod gamma V square 2 times mod gamma V cos 2 beta x minus theta V. Let me put all the values here. So you know that mod gamma V is k, theta V is 0 degree. So I'll write it as mod Vx equal to mod Vf under root 1 plus k square plus 2k cos 2 beta x. Again, as you can see that this particular expression is function of x. ये constant ही है. ठीक है, मैच लोड के केस में ये constant आता था. So this is coming out to be some function of x. तो यहाँ से अगर हम लोग प्लॉट बनाएंगे mod of vx versus x, so this will lead to some function of x versus x. और अगर आप क्लियरली नोटिस करें यहाँ से that this is having some under root of mod cos x. तो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इफ यू आर हैविंग द ग्राफ ऑफ द अंडर रूट cos x टाइप, सो अंडर रूट cos x टाइप ग्राफ इज ऑलवेज हैविंग द शार्प कॉर्नर्स वंस यू प्लॉट देम. cos x का ग्राफ हमेशा स्मूथ होता है, बट वंस यू टेक द मॉड ऑफ इट यू विल बी हैविंग द शार्प ट्रांजिशंस फ्रॉम जीरो टू नॉन जीरो वैल्यूज. ठीक है, तो ये मॉड cos x की वजह से ये थोड़ा सा शार्प ट्रांजिशन आएगा. मोर ओवर यू शुड ऑल्सो कंसिडर दैट दिस cos 2 beta x, दिस x is variable, so this graph of mod of vx versus vx will also be variable in nature. If I have to find out the maximum possible value of this thing, so the maximum possible value becomes 1 plus mod gamma v, and the minimum possible value of this voltage becomes mod of Vf 1 minus mod gamma V. इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, so this particular thing becomes 1 plus k, and this also becomes mod Vf 1 minus k. You know that your mod gamma V in this case will lie between 0 to 1 strictly. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 0 तो कब आता था? 0 used to come in case of matched load, so it is not matched. Exactly 1 कब आता था? Exactly 1 आपका तब आता था जब your load has to be short circuited in nature. So neither it was short circuited in nature nor it was exactly matched, so that is why it will lie between 0 to 1. और अगर ये 0 से 1 के बीच में lie कर रहा है, so both the quantities will not be equal to 0. Again you can say the same thing, that in case of ZL greater than Z0 also, the voltage maxima will be formed at the load, but the voltage minima is formed at a distance lambda by 4 from the load, and it will not be having the value of 0. तो यहाँ पे भी जो voltage minima form कर रहे हैं ना, that voltage minima is not exactly equal to 0. So I hope this point is also making sense for everyone कि आपका चाहे ZL greater than Z0 हो, चाहे ZL less than Z0 हो, जब तक ZL greater than Z0 और ZL less than Z0 है, in both the cases you are having non-zero values of the voltage minimas. ठीक है, चलो. VSWR pattern. How the pattern is going to look like? Again, you will first of all make the references. तो दोनों references बना लेते हैं सबसे पहले. So this is your mod of Vx. तो जिन लोगों ने खुद से ट्राई किया था ना, वो चेक भी करते जाना कि क्या आपने बिल्कुल ठीक किया था या नहीं. So you also have to verify your calculations. Okay. So this is your mod of Vx max, and this is also mod of Vx min. चलो, अगर इनके बीच में ग्राफ बनाना है तो exactly load you will be having maxima. This is non-zero. In this case, this is also non-zero.
तो यहाँ से देखो आप एक शार्प, यहाँ पे देखो ये वाला शार्प कट ऑफ देना। तो ये शार्प इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे मॉड का ग्राफ बनाएंगे अल्टीमेटली। These are the positions of the minimas, these are the positions of the maximas. तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो you can also locate their coordinates. This is going to be x equal to 0, or this represents the position of load itself. This will give you x equal to lambda by 4. This position will give you x equal to lambda by 2. This will give you x equal to 3 lambda by 4. And finally this will give you x equal to lambda. ठीक है, आसान है यहाँ तक काफ़ी. So you can do these things. Finally what you should do, if someone is asking you what is your VSWR, so if you want to calculate the VSWR, you will write it like this, that this will become mod of Vx max upon mod of Vx min. This will be your VSWR. Simultaneously this can also be written as 1 plus mod gamma V upon 1 minus mod gamma V. तो अगर कभी भी आपको ऐसा केस मिलता है जिसमें ये बना बनाया ग्राफ मिल जाता है, तो जब भी बने बनाए ग्राफ्स मिलते हैं उस केस में आपको जस्ट ये करना होता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट दिस पॉसिबल वैल्यू, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, just take the ratio of these two values, you will immediately get the VSWR. Finally you can also say that your VSWR in this case will be less than infinity. Why less than infinity? Because infinity तभी आ सकता है जब आपका Vx minimum जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कैसा मिल रहा हो, 0. So until and unless you are not getting the minimum value of the voltage or the current equal to 0, in that cases you cannot get the infinity VSWR. So if you want the infinity VSWR, this minimum value has to be shifted downward towards the this particular x axis. तो इस केस में x axis नहीं, से थोड़ा सा ऊपर आपको दिखना चाहिए, और ये पूरा का पूरा स्टैंडिंग वेव पैटर्न. मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए that what is happening at exactly load. Exactly load, if you are observing, you are getting the voltage maximum. ठीक है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है. अब तक आपको पैटर्न पकड़ में आ चुका होगा, अब तक आप बिल्कुल अच्छे से पैटर्न पकड़ चुके होंगे. अगर आप लास्ट ईयर पिछली 3 क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, देन यू मस्ट बी हैविंग अ क्लियर कट आइडिया, क्लियर कट पिक्चर इन योर माइंड दैट व्हेन एवर ZL इज इक्वल टू 0, because ZL equal to 0, which means there is a short circuit. At short circuit the voltages will become 0. So you can remember that in all that cases you will be having a voltage minima exactly at the load, और वो voltage minima की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. फिर आप ZL को थोड़ा सा आपने बढ़ाया, उसको Z0 से बट कम रखा, ZL को थोड़ा सा बढ़ा के Z0 से कम रखा, पहले 0 था, 0 से थोड़ा सा बढ़ाया. जैसे ही आपने ZL को थोड़ा सा बढ़ाया, you get to know that still your voltage minima is forming at the load, but that the value of minima is not equal to 0. Then you increased ZL further, then ZL becomes equal to Z0. As soon as ZL becomes equal to Z0, you came to know that there is not any standing wave pattern. You will be getting a flat graph of mod of Vx versus x. Then you further increased your ZL. ZL जैसे ही Z0 से ज़्यादा हुआ, you came to know that now exactly at the load I am getting my voltage minima. Since I am getting the voltage maxima exactly at the load, but still the voltage minima which is being formed at a distance lambda by 4 from load, the voltage minima which is being formed at lambda by 4 distance from the load having non-zero value. तो इस केस में भी जो voltage minima आ रहा है, it is having some non-zero values. ठीक है, चलो, तो VSWR calculation. So you know that VSWR is equal to 1 plus mod gamma V, 1 minus mod gamma V. What is this gamma V? This gamma V becomes ZL minus Z0 upon ZL plus Z0. If I apply this mod there, then again you can redefine this particular thing. This will become plus ZL minus Z0 upon ZL plus Z0 if the quantity inside the mod is positive, minus ZL minus Z0 upon ZL plus Z0 if your ZL becomes less than Z0. ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये सब कर चुके हो कल की क्लास में. इफ यू रिमेंबर, यू हैव डन ऑल द थिंग्स विच वी आर डूइंग हियर राइट नाउ. तो ये दोनों ही चीजें आप कर चुके हैं. नाउ व्हाट वी शुड डू, which values we should take. तो यहाँ से देखो ये mod gamma भी आपको दिख रहा है, and you know that this is the case of VSWR calculation under ZL greater than Z0. So if ZL is greater than Z0, what will be the value of mod gamma V? Mod gamma V can be directly written as this value. Put कर लो ये ZL minus Z0 upon ZL plus Z0. This will become ZL minus Z0 upon
जेड एल प्लस जेड नॉट, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा जेड एल बाई जेड नॉट विच इज़ ग्रेटर दैन 1. ठीक है, तो ऐसा एक शॉर्टकट हम लोगों ने डेवलप किया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो. सो लास्ट क्लास में वी डेवलप्ड अ शॉर्टकट लाइक दैट इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द VSWR. So to calculate the VSWR, what you can do, first of all you can observe your ZL and Z naught relation. So you can obtain ZL Z naught relation. Both of them has to be real, then only this shortcut is valid. So both of them are real, which means resistive type of load. So you are having two possibilities from here. You can calculate two ratios. Either you can calculate ZL by Z naught or you can calculate Z naught by ZL. दोनों में से जो भी 1 से ज़्यादा होगा that will represent your VSWR. So if it is greater than 1, this is less than 1. So in this case, this quantity is representing your VSWR. Why? Because you know that the range of the VSWR is always from 1 to infinity. 1 से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोगों को एक दूसरी इक्वेशन मिल जाती है, जैसे हम लोगों ने कल भी लिखा था. The same equation you get here also, mod of Vx max upon mod of Vx min becomes equal to ZL by Z naught in this case. सो वाई ZL बाई Z नॉट इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पे ZL बाई Z नॉट का रेशियो आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है. तो इस केस में भी आपको क्या करेगा, दे विल गिव यू अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न इन द एग्जामिनेशन, एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न दे देगा, एंड समवेयर इन द क्वेश्चंस दे विल बी हैविंग दिस हिडन डेटा दैट योर ZL इज ग्रेटर देन Z नॉट or Z naught is greater than ZL, whatever. So these two types of situations will be given to you. You should immediately calculate VSWR just by taking the magnitude of these maxima and minima, and you can also equate these values to ZL by Z naught or Z naught by ZL depending upon the cases. तो उनमें से 3 चीज़ें आपको मेंशन रहेंगी, एक चीज़ आपको अननोन कैलकुलेट करना रहेगा. That unknown you can calculate from this particular equation. ठीक है, कितने लोगों को समझ आ गया ये पॉइंट? आ रहा, बिल्कुल समझ आना चाहिए अगर आपने सारी क्लासेस फॉलो करी है. सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी वेरी सिंपल फॉर यू. बहुत ही स्मूथली आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस होनी चाहिए. तो देखो पर्पस यही है स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स पढ़ने का या फिर ट्रांसमिशन लाइन पढ़ने का. द पर्पस इज दैट यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर. So you can attempt a given question in the simplest possible manner only and only when you are having this conceptual clarity of every point. So if you are having the conceptual clarity of each and every point which I am teaching, the questions, कल अपना शायद अगर DPP का सेशन होता है तो आप देखना सारे क्वेश्चंस आप बिना पेन उठाए कर लोगे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, तो अल्टीमेट पर्पस अपना वही है कि हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीज़ों को. चीज़ें तभी सिंप्लीफाई होंगी जब बैक एंड पे आपने मेहनत कर रखी होगी. अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत आपको प्रैक्टिस है, तभी आप जाके मैदान में अच्छे से खेल पाओगे. अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो हर बॉल पे आपको दिक्कत आने वाली. बट अगर आपने प्रैक्टिस में वो सारी चीज़ें कर ली, आपने घर पे ये जो कॉन्सेप्ट थे इनकी प्रैक्टिस कर ली, सारे डायमेंशंस खुद से डिस्कस कर लिए, तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से किसी ना किसी केस में जाके फॉल कर जाएगा. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द डिस्कशन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है, चलो सिमिलर लेट अस डू द डिस्कशन. अच्छा, कितने लोगों ने ये कर लिया था? ये बताया नहीं आप लोगों ने. ये मैंने होमवर्क दिया था ना आपको. हो गया था सबसे? हो जाना चाहिए था. So this will become like this. Okay, on the similar grounds. देखो, फिर from here also you have to plot mod of Ix versus x, and obviously it is not constant, so it is the function of x. Okay, this is the function of x and this is something which you want to plot. So for that you need the value of mod of Ix max. What will be mod of Ix max? Mod of If 1 plus mod gamma v. This also becomes mod of If 1 plus k. Similarly, you can get the value of mod of Ix min. This becomes mod of If 1 minus mod gamma v. So this you can also write it as 1 minus k. As you get to know that these particular values will not become 0. दोनों ही नॉन जीरो नहीं रहेंगे. अच्छा, ये x max वाली पोजीशंस कौन सी हो जाएंगी? The positions of this x max will become 2n plus 1 pi
प्लस थीटा वी अपॉन 4 पाई इंटू लैम्डा। तो आपको पता है जहाँ जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमा बनेगा वहाँ पे मिनिमा बनेगा ऑन द सिमिलर बेसिस। दीज आर द पोजिशंस। तो पोजिशंस में आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डाउट होगा। पोजिशंस में आई डो नॉट थिंक you will be having any doubt whatsoever, because the positions are very much clear. If you want to calculate the voltage maxima, those will be the positions of the current minima. This we have already stated. ठीक है, चलो यहाँ पे CSWR पैटर्न की बात करते हैं। देखिए जरा CSWR पैटर्न बनाइए, फिर इसके बाद कंबाइंड पैटर्न बनाएंगे और वहाँ से भी एक इक्वेशन हम लोग निकालेंगे बाहर। सो दिस इज योर मॉड ऑफ IX, दिस इज प्लस x। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द बाउंड्री। तो बाउंड्री बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। ये रही बाउंड्री, कि अपना ग्राफ इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। सिंस वी आर प्लॉटिंग द मॉड वैल्यू, सो दैट इज वाई वी शुड मेक श्योर दैट द ट्रांजिशंस आर शार्प। मॉड ऑफ IX मैक्स, मॉड ऑफ IX min, एग्जैक्टली एट द लोड। दिस इज द पोजिशन ऑफ लोड। तो एग्जैक्टली एट द लोड अभी आपको क्या मिलने वाला है? करंट मिनिमा मिलेगा। और उस करंट मिनिमा की वैल्यू जीरो रहने वाली है क्या? नहीं। सो दैट करंट मिनिमा वैल्यू विल नेवर बी जीरो। तो लोड पे यहां से स्टार्ट करना है, और ये आपको प्लॉट करना है। दीज आर द ट्रांजिशन पॉइंट्स दैट शुड बी वेरी शार्प, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली प्लॉटिंग द मॉड ऑफ समथिंग। तो एग्जाम में हमेशा शार्प आएगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, मॉड को प्लॉट नहीं करता। एग्जाम में कभी कभी VX को ही प्लॉट करके दिखा देता है, बट उससे अपने एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर वो मॉड को प्लॉट नहीं कर रहा है, स्टिल हम लोग मॉड कैलकुलेट करके ही रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मॉड नहीं दिया तब भी आप क्या करेंगे, मॉड लेंगे पहले, देन द रेशियो ऑफ द मॉड विल गिव यू द CSWR एज इट इज इन दिस केस। सो दिस CSWR विल बिकम द रेशियो ऑफ मॉड ऑफ मैक्स upon mod of min. This you will be getting the CSWR ratio. तो जो ये CSWR आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, that is very important for us. Why? Because this CSWR you are calculating graphically. इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो आप, जस्ट एक ग्राफ किसी ने बना के दे दिया, आपने मैक्स और मिन कैलकुलेट करा, एंड इन दैट केस ऑल्सो यू विल नोटिस दैट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो जो ये CSWR आपको मिल रहा है ना, दैट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा, ये इन्फिनिटी से हमेशा आपको कम मिलना चाहिए। सो दीज आर सम क्रूशियल डिस्कशंस। और अब ये डिस्कशन काफ़ी इजी हो गए, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। तो हर एक टॉपिक में इनिशियली थोड़ा सा अगर फोकस करोगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझोगे, तो धीरे धीरे करके आगे सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, एंड यू विल बिकम वेरी कंफर्टेबल इन एवरी डिफिकल्ट टॉपिक ऑल्सो। ऐसे ट्रांजिएंट में होने वाला है, ऐसे स्मिथ चार्ट में होने वाला है, ऐसे वेवगाइड एंटीना, सब में यही हुआ। इनिशियली यू विल बी having a lot of mathematical parameters, lot of justifications, but once you go through with it, you will be having a complete idea of that, then you should start solving the questions. तो क्वेश्चन आपको बहुत easily आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन। तो तरीका हमें समझ आ गया that this was the case, and since both were real, so CSWR will become the ratio of ZL by Z। क्या होता है CSWR का मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो यहाँ से भी आप चाहते तो इक्वेशन लिख सकते थे, दैट दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ। जो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ, एंड दिस रेशियो हैज टू बी ZL इक्वल टू Z0। सो दिस यू आर मेकिंग अंडर दिस कंडीशन। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। आई होप इसके बाद हमें कंबाइंड पैटर्न बनाना है। चलो कंबाइंड पैटर्न भी बनाते हैं। सो लेट मी प्लॉट दिस कंबाइंड पैटर्न। अब कंबाइंड पैटर्न में क्या आपको ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दैट द मैक्सिमा एंड मिनिमास ऑफ बोथ वोल्टेज एंड करंट मे और मे नॉट कोइंसाइड। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपको कोइंसाइड करते हुए दिखें। तो इनके मैक्सिमम और मिनिमास अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं। ओके, सो दिस कैन बिकम मॉड ऑफ VX max, this can become mod of VX min।
this can become your mod of Ix max and this can become your mod of Ix min. ये था आपका लोड की पोजीशन, exactly x equal to 0. This was the position of the plus x. Now you have to start from the load. आपको पता है कि this is the case of the ZL greater than Z0. So exactly at the load we will be having the voltage maximus. तो वोल्टेज मैक्सिमा से शुरुआत करते हैं. देखिए ये है इन दोनों की बाउंड्री, इसके बीच में ही आपको पूरा का पूरा ग्राफ रखना है. ठीक है, इनके बीच में ही आपको पूरा का पूरा ग्राफ रखना है. तो ये लोब्स आप जो बनाए थोड़ा सा सिमेट्रिकल रहनी चाहिए. ठीक है, चलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए जो डिजायर्ड पॉइंट्स हैं अपने. मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब देखते हैं करंट वाला कैसे बनेगा. करंट के लिए ये दोनों पॉइंट्स हैं. करंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमा से स्टार्ट होगा. ये मिनिमा से स्टार्ट होगा और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ जाएगा आगे. सो दीज आर द पॉइंट्स. ये देखो वोल्टेज मैक्सिमा, करंट मिनिमा, करंट मिनिमा, वोल्टेज मैक्सिमा. तो ये दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो. दिस विल बी द पोजिशंस ऑफ x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, x इक्वल टू लैम्डा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग इट हियर. अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, ये वाली, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, ये वाली, तो अगर आप ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो ना, दिस दीज टू डिस्टेंसेस विल ऑलवेज बी इक्वल फॉर श्योर. मतलब ये Ix min और Ix max वाली. सो फ्रॉम देयर you will be having these relations in case of combined pattern. तो combined pattern के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. हालांकि combined pattern पे कभी पूछा नहीं क्वेश्चन, बट पूछा जा सकता है. इंडिविजुअल पैटर्न पे तो बहुत बार पूछ चुका है. पैटर्न दे के आपसे काफ़ी सारे बार क्वेश्चन पूछा है. बट अकॉर्डिंग टू मी दिस combined pattern is also expected in the examination. This will become ZL by Z0. तो combined pattern जब भी देगा तो उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन में आपको ट्रैप करने के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो उस केस में वो सिर्फ कंबाइंड पैटर्न देके आपसे क्या बोल सकता है कि ये पता है, ये पता है, ये पता है, इसकी वैल्यू बता दो, है ना. ऐसा करके आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकता है. मोर इम्पॉर्टेंटली इन दिस केस यू शुड ऑल्सो नोटिस कि ये दोनों जो वैल्यूज आ रहे हैं दीज आर नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए कि कंबाइंड पैटर्न में आपको क्या बनाना चाहिए एंड व्हाई द कंबाइंड पैटर्न इज नॉट एग्जैक्टली मैचिंग विद दिस मॉड ऑफ Vx max and mod of Ix max. They might or might not match, we are not sure, depending upon the different values of ZL and Z0, they will vary. So in general case if I have to make, I'll make it a little bit indifferent or little bit non-equal. ठीक है, तो non-equal बनाएंगे तो ये पैटर्न आपको एक साथ दिखेगा. Points to remember. First point, voltage maxima is formed at load. Second point, voltage minima. ठीक है, तो मिनिमा को ऑब्जर्व करना सबसे ज़रूरी होता है. इसके पहले केसेस में डायरेक्टली हम लोग मिनिमा को ही ऑब्जर्व करते थे लोड पे, बट यहाँ पे लोड पे मिनिमा बन नहीं रहा तो भी मिनिमा को ऑब्जर्व करेंगे. फॉर्म्ड एट लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस फ्रॉम लोड, and this minimum value will become not equal to 0. ठीक है. Third, what is VSWR and what is CSWR? In this case it is coming out to be ZL by Z0. तो अगर ये तीन बातें आप याद रखते हैं तो most of the questions you can attempt, provided you have understood all the derivational points which I have explained it in the process. ठीक है, आ गया ना समझ में. तो देखो वोल्टेज मैक्सिमा पता चल गया, वोल्टेज मिनिमा पता चल गया, सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली.
तो जस्ट अगर आपको वोल्टेज मिनिमा वोल्टेज मैक्सिमा पता चल गया, द करेंट पैटर्न्स कैन ऑलवेज बी मेड इन द सेम सिनेरियो. If the minimum value of the voltage is not equal to 0, so the minimum value of the current will also not become equal to 0. So these are the points which you can remember in case 4 under the condition of ZL greater than Z0. ठीक है, any doubt? अभी तक किसी को कोई डाउट? हाँ, दे सकते हो मेरा रेफरेंस. KKR का स्कोर भी बता दिया. चलो, दे सकते हो, किसी का भी रेफरेंस दे सकते हो यार, नॉट एन इशू. तो जब भी देखो फिनिक्स के लिए आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हो ना, तो फिनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए जो 10 मिनट का आप डेमो बना रहे हो, वो डेमो बहुत अच्छा होना चाहिए 10 मिनट्स का. देन ओनली योर कैंडिडेचर माइट बी सिलेक्टेड एज द फिनिक्स एजुकेटर और यू विल बी गेटिंग इनटू द ट्रेनिंग प्रोसेस. तो until and unless the demo is not impressive, you might not be selected as the पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो डेमो में आप इस बात पे ध्यान रखना कि आप समझा कितने अच्छे से पा रहे हो सामने वाले को. ठीक है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितना समझ पा रहे हो, आपका वहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए कि आप ऐसे समझो कि सामने वाले को कुछ आता नहीं, आप उसको कितने बेहतर तरीके से 10 मिनट में चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहे हो. भले ही कोई सिंपल सी चीज़ एक्सप्लेन करो, कोई भी सिंपल सा टॉपिक जो आपको लगता है. तो हमेशा जो टीचिंग का एक बेसिक फंडामेंटल होता है वो होता है कि आप सामने वाले को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो चीज़ों को, कितने अच्छे से उसको समझा पा रहे हो ताकि वो समझ जाए. तो अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है तो आप अपने लेवल से भी थोड़ा नीचे आइए, बेसिक चीज़ों को भी कनेक्ट करिए और सामने वाले को समझाइए. सो दैट 10 मिनट्स डेमो हैज़ टू बी वेरी इंप्रेसिव, देन ओनली यू विल बी गोइंग अहेड. चलो लास्ट केस पे आते हैं. पहले यहां तक एक बार सब लोग कंफर्म करेंगे. चलो पहले यहां तक एक बार सब लोग कंफर्म करो कि क्या सबको पॉइंट क्लियर है ना, सारे के सारे. अब देखो लास्ट केस आ गया है और इसी लास्ट केस के साथ साथ आपका जो स्टैंडिंग वेव रेशियो का पैटर्न होगा फॉर लॉसलेस लाइन एंड फॉर द रियल लोड, वो पूरा का पूरा डिस्कशन खत्म होगा. हालांकि इसके बाद भी वी आर हैविंग सम केसेस इन विच द लाइन विल स्टिल बी लॉसलेस बट द लोड्स विल बिकम complex in nature, so that also we have to discuss in the process. वहाँ से भी कुछ हम लोग concepts develop करेंगे, but meanwhile you should be having this case 5 in your mind and this should be discussed very simply. चलो, this is lossless transmission line. Z0 becomes under root L by C. This is real. This is your ZL. तो जो ZL यहाँ से आपको मिलेगा दैट विल बी इन्फिनिटी. तो अगर ये इन्फिनिटी है सो हाउ डज इट लुक लाइक? इट विल लुक लाइक एन ओपन सर्किट लोड. ठीक है, तो ये दोनों एंड अगर आप देखोगे ना, सो दैट विल बिकम ओपन. फाइन, तो दोनों लोड्स को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया. अब ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन खुला हुआ है. चलो आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे. And let me calculate the voltage reflection coefficient upon ZL plus Z0. So in this case ZL is tending to infinity and Z0 is real under root L by C. So you will get 1 minus Z0 by ZL upon 1 plus Z0 by ZL. So everyone is understanding this point कि ये जो ZL है ये कहाँ पे टेंड कर रहा है, it is tending to infinity. This ZL is also tending to infinity. So overall you will get 1 by 1 or 1. So finally आप यहाँ पे लिख सकते हो gamma v is equal to 1. So what will be the value of mod gamma v? It is coming out to be 1. Mod gamma v किसी और केस में भी 1 आता था क्या? Yes, in the case of short circuit load it was also coming out to be 1, but in that case your theta v was coming out to be pi. इस केस में आपका जो theta v आ रहा that is coming out to be 0 degree. Okay, तो ये पॉइंट बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, that in case of short circuit line or in case of open circuit line, in both the cases you are getting your mod gamma exactly equal to 1. Since mod gamma is exactly equal to 1 but your theta is changing, so theta wave will become 0 degree. So जैसे ही mod gamma आपका 1 आता है you should immediately understand that now my standing wave ratio will tend to infinity or the values of the voltage maxima and the voltage minimas are going to be what? 0. So they will become exactly equal to 0 in this case. So जब भी mod gamma आपका 1 आता है ये conclusion आप हमेशा ले सकते हो. So what will be the position of voltage maxima, current minima, impedance maxima? So this will be the position. The position will become 2n pi plus theta v upon 4 pi into lambda. So once you start putting all these values there,
थीटा भी इक्वल टू 0 डिग्री. जब भी थीटा भी इक्वल टू 0 डिग्री देते हैं, वी मेक श्योर दैट मॉड गामा भी हैज नॉट बिकम इक्वल टू 0. So from there you will get x equal to n lambda by 2. So if you will put n equal to 0, you will get x equal to 0. If you will put n equal to 1, you will get x equal to lambda by 2. If you put n equal to 2, you will get x equal to lambda, and so on. So these are the values of the position of the voltage maximus. So this is the first voltage maximum. This is first voltage maximum. This is second voltage maximum, and so on. तो यहाँ पे भी अगेन आप नोटिस करेंगे कि exactly at the load position what you are getting, exactly at the load position you are getting the first voltage maximum. So this is the first load position. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इस केस में जो ZL ग्रेटर देन Z0 था एंड ZL इन्फिनिटी था, ऑलमोस्ट दे आर हैविंग द सेम बिहेवियर as long as the load position is concerned. So exactly at the load positions, both are having the first voltage maximus, both in case of open circuit load and ZL greater than Z0. ये वाली आपके पास क्या हो जाएगी? अच्छा, ये क्या देख रहे हैं? Position of voltage minima, current maxima, impedance minima. So this will become 2n plus 1 pi plus theta v upon 4 pi. This will be multiplied by lambda. So let me put all the values here. You will get x equal to 2n plus 1 lambda by 4. थीटा भी आपने कितना पुट कर दिया यहाँ पे? 0 डिग्री. So again if you will put n equal to 0, you will get x equal to lambda by 4. If you will put n equal to 1, you will get x equal to 3 lambda by 4, and so on. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको मिलती चली जाएंगी. यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं दिस विल गिव यू द फर्स्ट वोल्टेज मिनिमम. वोल्टेज के टर्म्स में याद रखो, करंट और इम्पीडेंस आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस विल गिव यू द फर्स्ट वोल्टेज मिनिमा, दिस विल गिव यू द सेकेंड वोल्टेज मिनिमा, दिस विल गिव यू द सेकेंड वोल्टेज मिनिमा, एंड सो ऑन. फिर यहाँ पे आगे एक्सटेंड करते जा सकते थे. फाइन. इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ voltage at a distance from load. So what is the magnitude of voltage? ये आपको मिलता है mod Vx. तो देखो, शायद ही कोई ऐसा होगा जब जिसने ये पूरा नहीं कर लिया होगा, और करने के साथ साथ आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी मिली होगी दैट व्हाट एक्चुअली द स्टैंडिंग वेव रेशियो मीन्स, और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं. तो कुछ भी हम लोगों ने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो उसका भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हम लोगों ने देखा, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग का भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देखा. ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं बोल दिया कि मॉड Vx ले लो, ऐसा कर लो. प्रॉपर हम लोगों ने मॉड Vx की कैलकुलेशन की, देखा हम लोगों ने क्यों ऐसा बनना चाहिए ग्राफ. एवरीथिंग वॉज वेरी क्रिस्टल क्लियर. 1 + 1 + 2 cos 2 बीटा x. अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, so you will have mod Vx mod of cos बीटा x, और 2 को बाहर ले लेते. ये वाली वैल्यू आई होप सब लोग कैलकुलेट कर पा रहे होंगे. दिस विल बिकम mod Vf √2 + 2 cos 2 बीटा x. ठीक है, तो 2 + 2 cos थीटा कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम √4 cos स्क्वायर बीटा x. ठीक है, 1 + cos थीटा आई थिंक सबको पता होगा. 1 + cos 2 theta can be written as 2 cos square theta. So that is why I have written it like this. So 1 + 2 cos theta becomes 2 cos square theta. ठीक है, ये पता है ना सबको कि 1 + cos theta by 2 cos square theta. So that is why मैंने यहाँ पे mod cos 2 बीटा x लिख दिया. आपको मुझे बताना कि ये वैल्यू जो आपको दिख रही, is it coming out to be constant or not? So it is not coming out to be constant, rather it is coming out to be the function of x. So again, if you want to plot mod of Vx versus x, you should make sure that you are plotting some fx versus x format. And in this case, it is very visible that you are making the graph of mod of cos beta x. So if you are making the graph of mod of cos beta x, तो transitions कैसे रहेंगे? बहुत ही sharp transitions आपके आने चाहिए, because इस बार आप cos beta x नहीं plot कर रहे, rather you are making it as mod of cos beta x. So this small point has to be taken care of. चलो फिर इसके बाद ये कैलकुलेट कर लिया, फिर इसके बाद mod of Vx max कैलकुलेट कर लो. So mod of Vx max will become
मॉड ऑफ वी एफ प्लस 1 प्लस मॉड गामा वी, ये वैल्यू आपको मिलने वाली मॉड ऑफ 2vf. What will be mod of Vx min? This will become mod of Vf 1 minus mod gamma v. ये क्या आ गया यार, 0 आ गया. ठीक है, ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन दैट केस द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0. तो यहीं से आपको समझ आना चाहिए, इनका रेशियो लोगे तो वी एस डब्ल्यू आर कहाँ पे शूट कर जाएगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू या जीरो वैल्यू. जैसे आप रेशियो कैलकुलेट करोगे इमीडिएटली योर वी एस डब्ल्यू आर विल शूट टू द इन्फिनिटी. सिंस इट इज शूटिंग टू द इन्फिनिटी, सो यू कैन टॉक अबाउट द स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स. सो इफ यू हैव टू मेक द स्टैंडिंग वेव पैटर्न, you can make it like this. This is the pattern which we are talking about. अभी देखना यहाँ पे आपका फिर से वही चीज़ पिक्चर में आएगी जो सबसे पहले वाले केस में आई थी. ये मॉड बी एक्स, ये ले लो प्लस एक्स, ये ले लो एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 0 पे लोड. तो यहाँ पे आप ले लीजिए लोड. एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 0 पे अगर आपको लोड मिल रहा है तो यार ये बताना यहाँ से देख के आप, दैट इन दिस केस व्हाट विल हैपन. ये देखो रेफरेंस बनाना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे जो सेकंड वाला रेफरेंस है ना, उसको मैं 0 से बिल्कुल टच होता हुआ दिखा रहा हूँ. थोड़ा सा ऊपर बनाया ताकि आपको दिखे, बट यू शुड कंसिडर दिस पॉइंट एज एग्जैक्टली 0. सो दिस पॉइंट इज मॉड ऑफ वी एक्स मैक्स, दिस पॉइंट इज मॉड ऑफ वी एक्स मिन. एंड व्हाट इज दिस मॉड ऑफ वी एक्स मिन? इज इट नॉट इक्वल टू 0? यस, इट इज इक्वल टू 0. अब इस केस में भी आपको पता है कि मेरा जब, अब देखो ऐसे आप रिकॉल कर सकते हो कि एग्जैक्टली अगर शॉर्ट सर्किट होता, एग्जैक्टली शॉर्ट सर्किट होता तो लोड पे वोल्टेज 0 आता या लोड पे वोल्टेज मिनिमा बनता. यहाँ पे ओपन सर्किट है तो लोड पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे यू हैव टू मेक द वोल्टेज मैक्सिमम. सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एग्जैक्टली एट द लोड, और आपको मॉड कॉस बीटा एक्स का ग्राफ बनाते जाना. तो देखो अगर आप मॉड कॉस बीटा एक्स का ग्राफ बनाते तो ग्राफ ऐसे ही बनता. आप चेक करके देखना, प्लॉट करके देखना कि अगर आप ये ग्राफ बनाते 2 टाइम्स मॉड वी एक्स मॉड कॉस बीटा एक्स, तो इसका भी ग्राफ आप बनाना. आप देखना बिल्कुल एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा. तो आधे इधर आपका बनेगा, बाकी अगर पॉजिटिव साइड में बनाना चाहते हो तो ग्राफ ऐसे बनता पॉजिटिव साइड में मॉड कॉस बीटा एक्स का. समझ आ रहा है ना? तो वही ग्राफ यहाँ पे हमने प्लॉट करा है. फाइन. व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज मॉड ऑफ 2v. यहाँ से अगर हमसे कोई पूछता कि वी एस डब्ल्यू आर कैलकुलेट करके बताना है, सो व्हाट विल बी द वी एस डब्ल्यू आर? The VSWR in this case becomes mod of Vx max upon mod of Vx min, and this value will tend to infinity. ठीक है, ये पोजीशंस अगर आपको इंडिकेट करना है, you can indicate those positions. Positions of the voltage maximas and minimas. Lambda by 4, lambda by 2, 3 lambda by 4 and x equal to lambda. तो ये पोजीशंस आप चाहते तो इंडिकेट कर सकते थे. दैट इज वेरी सिंपल टू इंडिकेट. ठीक है, किसी को कोई डाउट ये समझने में कि यहाँ पे ये नीचे शूट डाउन कर गया और मॉड ऑफ वी एक्स मिन आपका 0 आ गया. तो याद रखना भी आसान है. इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, फॉर एनी शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज विल बिकम 0, विच मीन्स एग्जैक्टली एट द लोड यू विल बी हैविंग व्हाट, वोल्टेज मिनिमम, और उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी. इन केस ऑफ ओपन सर्किट, exactly at the load you will be having the voltage maxima and the minima value of the voltage will become equal to 0 volt. तो ये 0 volt हमने यहाँ पे शो कर लिया. चलो VSWR कैलकुलेशन करो यहाँ पे. What is VSWR calculation? This becomes 1 plus mod gamma V upon 1 minus mod gamma V and this will tend to infinity. तो VSWR पैटर्न आपका क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा. चलो आगे चलते हैं, करंट के बारे में भी सिमिलर डिस्कशन करते हैं. सो व्हाट इज मॉड आई एक्स इन दिस केस? दिस विल बिकम मॉड आई एफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस मॉड गामा वी स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड गामा वी कॉस 2 बीटा एक्स माइनस थीटा वी. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे पुट करिए. यू विल गेट मॉड आई एफ अंडर रूट 1 प्लस मॉड गामा वी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स. अच्छा ये वैल्यूज पुट कर दो ना गामा की. तो
तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 + 1 -2 cos बीटा एक्स। इसको आप सॉल्व करना, यहाँ पे आपको साइन मिल जाएगा। सो यू विल गेट इट एज 2 times mod of IF mod of sin बीटा एक्स। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यू आपको मिलेगी। दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी द फंक्शन ऑफ एक्स। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे। सो मॉड आई एक्स वर्सेज एक्स, यहाँ पे भी एक्स का फंक्शन आपका आ रहा है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस थिंग? द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विल बिकम मॉड ऑफ आई एफ 1 + मॉड गामा बी। देखो ये कितना मिल जाएगा आपको, 2 times mod IF. What will be the IX min? IX min, once you calculate, this will become mod IF 1 - mod gamma v, and this is coming out to be 0. पैटर्न अगर बनाना है, अब तो देखो इतनी बार आपने ये कर लिया है कि पूरा डेरिवेशन आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, शुरू से लेके आखिरी तक कोई भी केस अगर VSWR का दे दे तो पूरा का पूरा आप इमीडिएटली कंप्लीट कर सकते हो डिस्कशन। रेफरेंस पॉइंट्स 1 एक लगभग 0 को टच करता हुआ जाएगा, तो मैं लगभग टच करता हुआ आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी mod of IX max and this value is coming out to be mod of IX min. This mod of IX min will become 0 and this will become 2 times mod of IF. This is the position of x equal to 0, which is representing the position of the load. And if it is representing the position of the load, you can say that exactly at the load what will be forming? Exactly at the load अगर आप बात करो तो फिर से वही चीज़ यार, अगर उसमें वोल्टेज में मैक्सिमम बन रहा था तो करंट में क्या बनना चाहिए? मिनिमम। और इस बार देखो ये जो ग्राफ आपका बन रहा है ना, आपको दिख भी रहा होगा कि ये मॉड साइन जैसा बन रहा है। आप चाहो तो चेक करके देख लेना। सो दिस ग्राफ इज एक्चुअली यू आर प्लॉटिंग फॉर 2 times mod IF mod sin बीटा एक्स। ठीक है, मॉड साइन बीटा एक्स में अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा कुछ करके ग्राफ बनता है मॉड साइन का राइट साइड में। और आपको पता है जब भी मॉड का ग्राफ बनता है तो ट्रांजिशंस कैसे होने चाहिए? दीज ट्रांजिशंस हैज़ टू बी शार्प। तो ये शार्प ट्रांजिशंस आप जरूर शो करना। ओके, और अगर ये पॉइंट्स दिखाने सो यू कैन अगेन डू इट लाइक दिस। दीज विल बी लैम्डा बाई लैम्डा 4 डिस्टेंसेस एंड सो ऑन। तो देखो मेरे ख्याल से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था पूरा का पूरा। प्रोवाइडेड आपने फॉलो किया हो तो आपको ये पूरा डिस्कशन बिल्कुल इनसाइड आउट समझ आ गया होगा वेरी स्मूथली कि असल में स्टैंडिंग वेव रेशियो होता क्या है, और अगर लाइन लॉसलेस है और लोड अगर रियल है तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, एंड इन ऑल दोज केसेस व्हाट आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट वी हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। तो डायरेक्टली हमने कुछ भी नहीं बोला, वी हैव गिवन यू द मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन, ग्राफिकल जस्टिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये सारे ही पॉइंट काफ़ी क्रूशियल थे। चलो CSWR निकालो। What will be CSWR? Mod of IX max upon mod of IX min. Will it tend to infinity? Yes. Why? Because क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, मैक्सिमम इतना, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करोगे दिस दे विल श्योरली टेंड टू इन्फिनिटी। कंबाइंड पैटर्न। अच्छा, CSWR कैलकुलेशन, सो एवरीवन नोस CSWR विल टेंड टू इन्फिनिटी। कंबाइंड पैटर्न, तो कंबाइंड पैटर्न में इस बार ठीक है जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो तो दोनों में मैच करेगी इस बार। सो दिस इज ठीक है, दिस विल बिकम +x। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है दे माइट नॉट मैच ऑलवेज। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा मैच करे ज़रूरी नहीं है, बट मिनिमम तो 0 है, तो 0 तो आपका कोइंसाइड कर ही जाएगा। ये और एक ये ले लो, 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए। दिस इज योर mod of VX max, this is mod of IX max,
and this is mod of Vx min equal to mod of Ix min. फाइन, ये दोनों ही आपको मिलेंगे जीरो, दोनों वैल्यूज आपको जीरो मिल जाएंगे. ग्राफ आपको बनाना आता है. एग्जैक्टली एट द लोड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वोल्टेज मैक्सिमा. तो ये वोल्टेज मैक्सिमा वाले पॉइंट्स आएंगे. और अगर आपको करंट वाले पॉइंट्स बनाने तो जस्ट यू हैव टू मेक द कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ. कभी कभी यार ये बोर्ड हैंग हो जाता है तो अपने आप ये ग्राफ वगैरह बना के देने लगते हैं. ठीक है, चलो देखो इसको. अब देखो इतनी डिफिकल्ट चीज़ पढ़ रहे हो तो हम लोग कभी कभी हैंग हो जाते हैं. ये तो बोर्ड है ना, तो दीज थिंग्स आर नॉट सिंपल but I'm still trying my level best to give you all the points जिनसे कि आपकी लर्निंग थोड़ी सी स्मूथ हो सके. तो देखो थोड़ी देर पहले इसने खुद ही ग्राफ बना के दे दिया. 3 दिन से हम लोग इस पे ग्राफ बना रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसका AI सिस्टम एक्टिवेट हो गया और ये बोल रहा है कि अब तुम ग्राफ मत बनाओ, मैं खुद ही बना दे रहा हूँ. 3 दिन से लगे हुए हो, मैक्सिमम मिनिमम, तो इसने खुद ही बना के दे दिया. हालांकि गलत इसने बनाया था, तो हम इसको सही करते हैं. देखो तो अब यहाँ पे Ix यहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमम, तो ये थोड़ा नीचे से बन के जाएगा ऐसे. तो मैक्सिमम मिनिमा से ये भी तंग आ गया. चलो x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 4 एंड x इक्वल टू लैम्डा. ठीक है, चलिए खैर आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि यहाँ पे ये रेशियोज आपने कैसे कैलकुलेट करें. तो ये CSWR इक्वल टू VSWR टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये आपका था फाइनल पॉइंट. इसका AI सिस्टम अभी एक्टिवेट हो गया. अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये उसको खुद अपने हिसाब से प्रोसेस कर रहा है. चलो पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट, voltage maxima is formed at load. Maxima is formed at load. Second, voltage minima is formed at lambda by 4 फ्रॉम लोड. और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सो दिस वोल्टेज मिनिमा इज कमिंग आउट टू बी 0. एंड व्हाट अबाउट CSWR एंड VSWR? दे आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी. समझ आए सबको यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से ना ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि अभी तक हमने 5 केसेस कौन से डिस्कस किए. तो एक काम करो, ये पांचों केसेस जो हम लोग कर रहे हैं इसको एक बार फटाफट दिमाग में प्रोसेस करते हैं. फर्स्ट केस ZL इक्वल टू 0, देन वी इंक्रीज द ZL टू द लेस देन Z0, देन ZL इक्वल टू Z0, देन ZL ग्रेटर देन Z0, देन ग्रेजुअली वी रीच्ड ZL टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सो एज सून एज वी हैव रीच्ड ZL टेंडिंग टू इन्फिनिटी द प्रोसेस फिनिश्ड. तो 5 केसेस डिस्कस किए थे. इनिशियली फॉर ZL इक्वल टू 0
load was short circuited. In that case, exactly at the load we were getting the voltage minima, that too with zero value. बस खत्म हो गया, आगे बढ़िए. In case of ZL less than Z0, we were getting voltage minima exactly at the load, and the voltage minimum value was not equal to zero. For ZL equal to Z0, we did not get any standing wave ratio. For ZL greater than Z0, we get the voltage maxima exactly at the load with minimum voltage not equal to zero. In case of ZL tending to infinity or open circuit load, we get the voltage maxima at the load, and whatever the minima has been formed at a distance of lambda by 4, that minimum value has to be zero. तो ये 5 cases की summary है. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.